फासीवाद मुर्दाबाद 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 फासीवाद मुर्दाबाद 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 फासीवाद मुर्दाबाद जातिवाद मुर्दाबाद 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 मस्जिद मदरसे की राजनीति बंद करो बंद करो बंद करो मस्जिद मदरसे की राजनीति बंद करो बंद करो बंद करो मस्जिद मंदिर की राजनीति बंद करो बंद करो बंद करो मस्जिदों पर सरकारी हमला बंद करो बंद करो बंद करो मस्जिदों पर सरकारी हमला बंद करो बंद करो बंद करो संभल के मस्जिद को इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो संभल के मस्जिद को इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो संभल के मुसलमानों को इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो बंद करो बंद करो सरकारी दहशतगर्दी बंद बंद करो बंद करो मध्य पुलिस मुर्दाबाद 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 मध्य पुलिस मुर्दाबाद 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 मध्य पुलिस मुर्दाबाद 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 संघी पुलिस मुर्दाबाद 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 संघी पुलिस मुर्दाबाद 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 एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है हम मुल्क बचाने निकले हैं आओ हमारे साथ हम मुल्क बचाने निकले हैं आओ हमारे साथ हम मुल्क बचाने निकले हैं आओ हमारे साथ चलो संविधान बचाने निकले हैं आओ हमारे साथ चलो संविधान बचाने निकले हैं आओ हमारे साथ चलो संभल के मस्जिद को इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो संभल को दूसरी बारी नहीं बनने देंगे संघी पुलिस मुर्दाबाद 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 जब सरकारें डरती है पुलिस को आगे करती है जब सरकारें डरती है पुलिस को आगे करती है जब सरकारें डरती है पुलिस को आगे करती है मध्य पुलिस मुर्दाबाद 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 मध्य पुलिस मुर्दाबाद 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 कातिल पुलिस मुर्दाबाद 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 कातिल पुलिस मुर्दाबाद 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 संघ पुलिस मुर्दाबाद 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 संघ पुलिस को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो कातिल पुलिस को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो कातिल पुलिस को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार कातिल पुलिस को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो एसडीपीआई का नारा है एसडीपीआई का नारा है एसडीपीआई का नारा है जिंदाबाद 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 संभल के मुसलमानों को इंसाफ दो कातिल पुलिस मुर्दाबाद मध्य पुलिस मुर्दाबाद जब सरकारें डरती हैं पुलिस को आगे करती है बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाहु खैरा। भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यूपी संभल में जो इंसिडेंट हुआ है उसके मुताबिक से हम अपनी कुछ बातें रखेंगे और इंशाअल्लाह उसी के साथ में हमारा प्रोटेस्ट को दर्ज करवाएंगे जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। In the name of justice and unity, we stand here today deeply concerned by the tragic events in Sambhal, Uttar Pradesh. The violent clash near the Shahi Jama Masjid during a survey left us with a heavy heart. This incident resulting in the loss of lives, injuries to civilians and officers, and the destruction of property is a stark reminder of the need for a dialogue and restraint in the sensitive matters. The violence aroused during a survey ordered by the judiciary to examine the historical claims about the mosque site. This legal procedure, however, escalated into the chaos with accusations of provocation and stone pelting met with retaliatory measures. Reports indicate that 3 individuals lost their lives, including Naeem, Bilal and Noman, and several policemen sustained injuries, including the serious ones. We extend our condolences to the bereaved families and pray for the recovery of the injured.
We must remember that justice cannot be served through the violence or oppression. The responsibility lies with all parties, authorities, community leaders and the citizens. To act with wisdom and prioritize appeals, authorities must ensure investigations are transparent and unbiased, holding accountable those who incited unrest. Similarly, we urge a restraint among the citizens as the violence undermines the moral strength of any cause. To the administration, we stress the importance of sensitivity in the handling religious and historical disputes. Surveys and the legal action must proceed without undermining the communal harmony or triggering emotional distress. To the people of Sambal, let this incident serve as a call for a unity, dialogue and a mutual respect, rather than a division and a conflict. As SDPI, we advocate for inclusive policies, justice for all communities, and the steadfast adherence to our constitutional values. Together, we can ensure this Sambal become a symbol of resilience and a peace rather than discord. May justice prevail and may the peace return to a beloved nation. This approach seeks to the balance compassion, justice, and a call for a non-violence, while emphasizing accountability and constitutional values. भाइयों, इस बात को मैंने अपने सामने रखा, इंशाअल्लाह आगे की बात हमारे जावेद भाई वो रखेंगे। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे जो जमा हुए हैं, जो संभल में जो मस्जिद के नाम से सर्वे से जो एक ढोंग रचा गया है, जो हिंसावादी भड़काने के लिए जो एक सर्वे का नाम देके ये जो प्लानिंग से किया गया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये आखिर क्यों हो रहा है, ये हमको समझना है। ये जो हो रहा है, ये एक समाज को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए एक फासिस्ट ताकत जो है, जिसको बीजेपी बोलते हैं, जिसको आरएसएस बोलते हैं, जिसको वीएचपी बोलते हैं, जिसको बजरंग दल बोलते हैं, ये सब में उनकी मिली जुली जो साजिश है, उसको हम नाकाम करके रहेंगे। ये जो मस्जिद का जो सर्वे ये करते हैं, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, संभल मस्जिद जो है ये आज की नहीं है, ये कोई 50 साल पुरानी मस्जिद नहीं है, ये कोई आजादी के बाद बनी हुई मस्जिद नहीं है। ये मस्जिद जो है कम से कम 250-300 साल पुरानी मस्जिद है, ये हमको समझना है। 91 का जो वर्शिप एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा गया है, उसको साफ साफ बनाया गया है कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी धर्म स्थल है, चाहे वो मस्जिद हो, वो मंदिर हो, वो गुरुद्वारा हो, वो चर्च हो, वो एलईडी रहेगा। मतलब जो 15 अगस्त 1947 के पहले जितनी भी मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा जो बन चुका है, वो एज इट इज रहेगा। उसका सर्वे भी नहीं होगा, उसकी छेड़खानी भी नहीं होगी। उसमें जो जैसा पूजा करता है, जो जैसा नमाज पढ़ता है, क्रिश्चियन समाज अपनी पूजा करता है, सिख समाज अपनी पूजा करते हैं, उनको हम ना छेड़ेंगे, ना उनको डिस्टर्ब करेंगे। ये वर्शिप एक्ट का कानून है। तो ये जो वर्शिप एक्ट का कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? या क्या ये देश संविधान से चलने वाला नहीं है? ये देश क्या तानाशाही से चलेगा? ये आवाम कब समझेगी? ये समाज के लोग कब समझेंगे? ये पुलिस डिपार्टमेंट जो शपथ लेके पुलिस में ज्वाइनिंग होते हैं, ये जज जो शपथ लेके जज की कुर्सी पे बैठता है, ये एडवोकेट जो शपथ लेके केस लड़ता है, ये आईएएस ऑफिसर, ये आईपीएस ऑफिसर जो शपथ लेके अपनी कुर्सी पे आते हैं, तो क्या ये शपथ में वो नहीं लिया गया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर इंसाफ की बात करेंगे और इंसाफ से चलेंगे? तो ये क्या वो शपथ नहीं ली है? अगर ये शपथ लिए हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे, तो ये क्यों हो रहा है? हमको ये समझना है। जो ये संभल मस्जिद है, ये 250-300 साल पुरानी है, तो ये वर्शिप एक्ट पे बैठता है कि इसका सर्वे नहीं होना चाहिए। जब कोई चीज का इलीगल सर्वे करा जाता है, तो वो सामने वाले को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। जब ये मस्जिद के सर्वे कर रहे थे, तो जो ये एडवोकेट थे हरीश शंकर जैन, इन्होंने
वाराणसी कोर्ट जिसको बनारस बोलते हैं, मथुरा कोर्ट और ये जो संबल कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं सर्वे करने की। शाम में 5 बजे एक ऑर्डर इशू होता है कि मस्जिद का सर्वे किया जाए। अभी आप बताइए, जो जज ने ऑर्डर इशू किया, क्या वो संविधान को फॉलो करके नहीं चलेंगे? क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट जो ये जज का, जो ये एडवोकेट का, जो ये कमेटी का साथ देके कंधे से कंधा मिला के रोड पर चल रही थी, तो क्या ये संविधान को फॉलो नहीं करेंगे? ये क्या तानाशाही करेंगे? ये क्या दादागिरी करेंगे? जबकि वॉशिंग रोड में साफ साफ दिया हुआ है कि जितने भी 47 के पहले मस्जिद है उसको छुआ ली जाए। तो ये सर्वे क्यों हो रहा है? ऐसी मसला ज्ञान वापी का हुआ था, ऐसी मसला मथुरा का हो रहा है, ऐसी मसला गुजरात में 500 साल पहले पुरानी मस्जिद दरगाह शहीद किया गया। अभी भी ये काम हो रहा है। ये कहाँ है वो सेक्युलर नेता जिसको पब्लिक जमा के वोट देती है, जो जीतने के बाद मंत्रालय पार्लियामेंट में जाते हैं? ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? ये लोग क्या सिर्फ वोट लेके वहां पे एसी के रूम में बैठने गए हैं? कहाँ है वो अखिलेश यादव? कहाँ है वो राहुल गांधी? कहाँ है महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज जितेंद्र आवाज? ये कब हमारे लिए उठेंगे? हमको अभी भी समझ में नहीं आया। बढ़ बढ़ के वोट देने का नतीजा क्या हुआ? या पब्लिक रोड पे प्रोटेस्ट करे? बढ़ बढ़ के वोट देने का नतीजा क्या हुआ कि एक समाज पे जुल्म हो, वो समाज चुपचाप सहते रहे? बढ़ बढ़ के वोट देने का नतीजा क्या हुआ? कानून से नहीं चले, दादागिरी से चले। क्या ये इसके लिए हमने वोट दिया? ये हम कब समझेंगे? ये जो सर्वे हुआ, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये इलीगल सर्वे है। जब आप वॉशिंग एक्ट को नहीं मानते तो ये सर्वे भी हम नहीं मानते। आपको ये सर्वे करने की इजाजत किसने दिया? और अब जब शाम में 5 बजे ये मथुरा कोर्ट, ये वाराणसी कोर्ट, ये संबल कोर्ट जब ये ऑर्डर पास करता है सर्वे करने का, तो उसके 1 घंटे के बाद आपको किसने इजाजत दी कि जाके मस्जिद में सर्वे करे? क्या आप जब सर्वे के लिए जा रहे हैं आप मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म किए? आपने उनके जिम्मेदारों को इन्फॉर्म किए? आपने कोई पीस कमेटी को इन्फॉर्म किए? आपने कोई मोहल्ला कमेटी को इन्फॉर्म किए? आपने कोई वहां पे जो मोहल्ले के लोग हैं उनको इन्फॉर्म किए? आपने मस्जिद के ऊपर कोई नोटिस चिपकाई? आपको टाइम देना चाहिए था कि ये ऑर्डर आया है, इस काम को सर्वे करना है। लेकिन आप देखिए, इनकी साजिश देखिए, इनकी प्लानिंग देखिए। 5 बजे शाम में ऑर्डर आता है, 6 साढ़े 6 बजे ये मस्जिद के बाहर सर्वे करने पहुंच जाते हैं बिना किसी का इन्फॉर्म किए हुए। तो ये क्या साजिश नहीं है? अगर आप 15 दिन के पहले नोटिस देते कि नोटिस आई, तो क्या मस्जिद ट्रस्टी वाले लोग ये नोटिस को चैलेंज नहीं करते? ये सर्वे को नहीं रुकाते? आप लोग हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदुस्तान के संविधान को फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोग देशद्रोही हो। ये मुसलमान को देशद्रोही बोलते हैं, ये कभी सिख को देशद्रोही बोलते हैं, ये कभी हिंदू को देशद्रोही बोलते हैं, ये कभी क्रिश्चियन को देशद्रोही बोलते हैं। सबसे बड़ा देशद्रोही जो है, ये जो आतंक यहाँ फैला रहे हैं, जो डेमोक्रेसी से नहीं चल रहे हैं, जो संविधान से नहीं चल रहे हैं, सबसे बड़े देशद्रोही इन लोग हैं। लेकिन इन लोग से बदनाम करने लगे हैं। ये जो एडवोकेट हरीश शंकर जैन है, ये जो सर्वे का माफिया है, इसका आप रिकॉर्ड पहले निकालेंगे तो ये हर मस्जिद का सर्वे इसी करवाता है। ये ऐसे ही केस में पुटअप करता है, बोलता है यहाँ पे मंदिर से पहले यहाँ पे मस्जिद से पहले मंदिर थी, हमको सर्वे करना है। जब कानून ने बोल दिया कि यहाँ पे जो 47 से पहले 1947 से पहले जो जैसी चीजें वैसी रहेगी, तो आपको उंगली करने कौन बोला जा रहा है? ये हमको समझना है। शाम को 5 बजे सर्वे होता है, ऑर्डर आता है, 6 साढ़े 6 बजे सर्वे करते हैं, 2 घंटे में सर्वे हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 घंटे में संबल मस्जिद का सर्वे हो जाता है। वो टाइम सर्वे में इनको कुछ नहीं मिलता कि वो उसके नीचे मंदिर है, उसके नीचे कुछ पत्थर है, उसके नीचे कोई मूर्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता इनको। और ये दादागिरी से सर्वे करते हैं, मस्जिद के अंदर घुस के जानबूझ के सर्वे करते हैं, वहां के लोगों को तकलीफ देते हैं। फिर भी मुसलमान ने इनको साथ दिया, ठीक है भाई आप ऑर्डर लेके आए, आज सर्वे कर लो। लेकिन सर्वे करने का कुछ नहीं मिला, ये फेल हो गए। फिर इनकी प्लानिंग देखिए, इनकी साजिश देखिए। ये कल सुबह उसी दिन मतलब कल सुबह 6 बजे ये वापिस सर्वे करने आते हैं बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए। सर्वे करने के साथ पुलिस डिपार्टमेंट आती है,
एडवोकेट की टीम रहती है और सोने पे सुहागा इनके साथ हिंदू संगठन की भी टीम रहती है जिसको हम देशद्रोही बोलते हैं। और जब ये सर्वे करने जाते हैं, आप लोग ने वीडियो देखेंगे, ये लोग भड़काऊ नारे लगाते हैं, प्रोएक्टिव नारे लगाते हैं जिससे समाज को तकलीफ हो। अगर आपको सर्वे दिन कुछ नहीं मिला तो आप दूसरे दिन सर्वे करने आ रहे हो। पहली बात तो आप इलीगल सर्वे कर रहे हो, आपको तो भी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको सर्वे करना है तो आप अच्छे से जाओ, वहां पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, एक समाज को टारगेट करते हुए सर्वे करने जा रहे हैं। हिंदू संगठन को किसने परमिशन दी कि उनके साथ जाके सर्वे करे? तो जब ये सर्वे करने वापस जाते हैं तो वहां पर जिम्मेदार उनको रोकते हैं कि आप लोग नारे मत लगाओ, माहौल खराब हो सकता है। लेकिन ये प्लानिंग इनकी पहले से थी कि हमको माहौल खराब करना है। ये हिंदू संगठन की प्लानिंग, ये जो आईपीएस ऑफिसर थे उनकी प्लानिंग, ये जो वकील की प्लानिंग, ये पहले से की गई थी कि हमको सर्वे करना है। और ये भड़काऊ, क्योंकि रात को कुछ नहीं हुआ, रात को कोई फसाद नहीं हुआ, रात को कोई पत्थर नहीं चलाया, रात को कोई नहीं मरा, एकदम शांतिपूर्ण से सर्वे हो गया, ये लोग चले गए। लेकिन इनकी जो है ना अंदर से फीलिंग को हर्ट हुआ कि भाई कुछ हुआ नहीं, ऐसे कैसे इतनी शांति से सर्वे हो गया। दूसरे दिन सुबह 6 बजे फिर आते हैं, सर्वे करते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं और मस्जिद में घुसने की कोशिश करते हैं। जब इनसे ऑर्डर कॉपी वगैरह सब मांगी जाती है, इनके पास कुछ नहीं रहता। सर्वे करने के बाद ये ऑर्डर कॉपी वो जिम्मेदार लोग को देते हैं, ये ऑर्डर है। पहली बात तो ये ऑर्डर हम मानते ही नहीं है। हम 91 का वर्शिप एक्ट मानते हैं जो हमको संविधान ने इजाजत दिया कि जो धर्मस्थल है वो वैसी रहेगा। तो यह काय के लिए ऑर्डर पास हो रहा है? ये हिंदुस्तान का माहौल खराब करने में क्यों लगे हुए हैं? यहाँ पे सिर्फ वो एडवोकेट की गलती नहीं है, यहाँ पे वो प्रशासन, अधिकारी और जितने उनके साथ चले हैं उन सब की गलती है। ये सर्वे करने की इजाजत जो उनका साथ दिए ये सब हुए। जब वहां पे पब्लिक ने एतराज किया, पब्लिक ने, जो नॉर्मल पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, जो रोज के कमाने खाने वाले हैं, जो जिम्मेदार है, उन्होंने जब ऑब्जेक्शन लिया तो इन्होंने वहां से वो तनाव इन्होंने भड़काना शुरू किया, वो करना शुरू किया। एक झूठी अफवाह फैलाई कि वहां से हमको पत्थर आ रहा है। क्या आ रहा है? पत्थर आ रहे हैं। जो वहां पे जो सीईओ है वहां के संबल के अनुज चौधरी जो सीईओ है, अनुज चौधरी जो सीईओ है, उन्होंने ना कुछ समझा ना कुछ जाना, उन्होंने सीधा फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। ये अनुज चौधरी को फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया? कभी कोई पूछा? ये आपकी फायरिंग की वजह से 5 से 6 लोग, मासूम लोग शहीद हो गए। हम वो शहीद को सलाम करते हैं। ये 5 से 6 लोग वहां शहीद हो गए, इनको फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया? वीडियो में साफ साफ दिखा रहा है पुलिस कैसा फायरिंग कर रही है। एक मासूम लोगों पे पुलिस कैसा फायरिंग कर रही है, गन मशीन चला रही है, पिस्तौल से फायरिंग कर रही है, यहाँ तक कि पुलिस अब वहां के पत्थर उठा के पब्लिक को मार रही है। यह आज का नहीं है, यह हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। हर गंगा में पुलिस जो है कभी पत्थर मारती है, कभी फायरिंग करती है, जो है बिगड़ प्रूफ के, बिगड़ जो है ऑर्डर के। इन लोगों को ऑर्डर कौन देता है कि आप आम जनता पे फायरिंग करो? आपके पास रबर बुलेट नहीं थी, आपके पास लाठी नहीं थी, आपके पास वो सेफ्टी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, आप लोग ने हेलमेट पहना था, आप लोग के पास बैरिकेड था, तो आपको फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया? वो फैमिली का ना होगा जिसके 5 से 6 लोग शहीद हुए, उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? क्या है वो अखिलेश यादव, क्या है वो मोदी जी, क्या है वो अमित शाह, क्या है वो हेक्टर सो-कॉल्ड सेक्युलर नेता लोग, क्या है महाराष्ट्र की आवाज जितेंद्र आवाज, क्या है ये सब लोग? क्यों? अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये सेक्युलर नेता लोग कहाँ गए? दिल के अंदर घुस गए। आम आदमी की जान जा रही है, इनको कुछ पड़ी नहीं है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है, इनको सिर्फ अपने वोट बैंक की पड़ी है। ये मुसलमान का बढ़ के वोट लेते हैं। जब मुसलमान समाज पे जुल्म होता है, जब दलित समाज पे जुल्म होता है, तब ये लोग बिल में क्यों घुस जाते हैं? क्या है वो अखिलेश यूपी का है ना, क्यों नहीं जाता संभल में? क्यों नहीं ग्राउंड में काम करते? क्यों नहीं वो मासूम की फैमिली को जाके मिलते? क्यों नहीं वो पुलिस ऑफिसर जो गोली चला के जिसने मर्डर किया, मैं मर्डर बोलूंगा, मर्डर,
उसने 5 मासूम लोग का मर्डर किया हुआ है। वो उसने मर्डर किया है 5 लोग का। उसने एक रिलीजियस प्लेस को टारगेट करके जानबूझ के प्लानिंग के साथ सर्वे करवाया। इसकी सजा कौन दिलवाएगा? कहाँ वो नेता लोग? मेरे को भेजो, मैं देती हूँ, एड्रेस दो। बाद में अनुज चौधरी के साथ जो एसपी है के बिश्नोई, वो बोलते हैं हमने लाठीचार्ज कराई, वो बोलते हैं हमने रबर बुलेट चलाई। एक भी जमीन पे रबर बुलेट का प्रूफ नहीं मिला, एक को भी बदन पे लाठीचार्ज का निशान नहीं मिला। दीवारों पे, जमीनों पे बुलेट्स मिली है, लोगों के खून मिले हैं। हिंदुस्तान आज भी खून मांग रहा है, तो इंशाअल्लाह हम ये फासिस्ट ताकत लोग को, ये देश को आजाद कराने इन लोग को हम अपना खून देने को तैयार हैं। ये आप क्या समझे? मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख जो पहले देश को आजाद कराए थे अंग्रेजों से, तो हम तुम जैसे चोरों से भी देश को आजाद कराने की ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ हमारे संविधान में रह के काम करना चाहते हैं। आज जो हम मासूम की आवाज बन रहे हैं, ये संविधान में रह के हम काम कर रहे हैं। आपसे लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। आप हमको ये बुलेट, ये बम, ये लाठी से मत डराओ। हमारे साथ देश का संविधान है, हम देश के संविधान में रह के हमको इंसाफ लेने आता है। ये देश के संविधान में रह के हमको हथियारों को सजा ये जो गोदी मीडिया है, मैं गोदी मीडिया का बोल रहा हूँ भाई, ये जो गोदी मीडिया है जो गलत न्यूज चलाती है कि वहां से मुसलमान समाज ने पत्थर मारा तो पुलिस ने फायरिंग किया। अगर मुसलमान समाज ने, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मुसलमान समाज ने पत्थर मारा तो तुम्हारा काम क्या था कि उसको रोकना, उसके ऊपर लाठी चार्ज करना। लेकिन आपने क्या किए? आपने सीधा फायरिंग किए। आपको किसने इजाजत दी? अभी वो घर वालों को, अभी वो घर वालों को कौन इंसाफ दिलाएगा? उनको कंपेंसेशन कौन देगा? इसमें कुछ फैमिली ऐसी है जो डेली कमाती थी, डेली खाती थी। आपने वो कमाने वाले का घर उजाड़ दिया। अब उनकी फैमिली, बच्चों को कौन देखेगा? यहाँ पे किसी को नहीं पड़ी है। यहाँ पे सब अपना जश्न मनाने में लगे हैं, कोई स्टेज प्रोग्राम करने में लगा है, तो कोई दिल्ली में बैठ के अपनी सरकार बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तू ऐसी पॉलिटिक्स पे, तू ऐसे लीडर पे जो इस समाज पे जुल्म हो रहा है, फिर भी अपनी आवाज उठाने को नहीं तैयार। जब ये मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो हमारे उलमा के ताज है, जब ये बयान करते हैं कि यहाँ पे अन्य सरकार को सपोर्ट करो, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करने बोल दिए। उन्होंने जब ये बोला तो एक वो 1.5 फुटिया वो नेपाली नीतीश है, वो बोलता है तुम्हारी दाढ़ी खींच के बाहर निकालूंगा। तब कहते हैं जितेंद्र अवार्ड, तब कहते हैं ये उलमा लोग जो गली गली में घूम के जितेंद्र अवार्ड का प्रचार कर रहे थे, तब क्यों नहीं जाके मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान के लिए और सपोर्ट के लिए रोड पर उतरे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने, ये मुसलमान ने हमेशा यहाँ पे अमन बरकरार रखने के लिए कुर्बानी दी। ये हमेशा मुसलमान समाज, ये दलित समाज, ये क्रिश्चियन समाज, ये सिख समाज हमेशा देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए कुर्बानी दी, हमेशा अमन को कायम करने के लिए कुर्बानी दी। लेकिन आप हमको ही बदनाम कर रहे हो, आप हमारा ही घर उजाड़ रहे हो, आप हमको ही बेकसूर को सजा दिला रहे हो। वो जो बिश्नोई है, वो जो अनुज चौधरी है, वो क्या बोलते हैं? इसके साथ हम 500 घर को बुलडोज करेंगे। तुम्हारा बाप का राज है जो 500 घर को बुलडोज करोगे? जो मुसलमानों को इंसाफ दो, मुसलमानों को इंसाफ दो। जो पुलिस वाला गोली चलाया, जो पुलिस वाला गोली चलाया, क्या उसके घर को यूपी गवर्नमेंट बुलडोज करेगी? क्या उसकी फैमिली के घर को बुलडोज करेगी? क्या वो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर के घर को बुलडोज करेगी?
अगर वो बुलडोज करती तो यहाँ पे बैलेंस वाला फैसला होगा। अगर वो बुलडोज करेगी मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद करो, मस्जिद की सरकारी हमले बंद करो, सुंदर की मस्जिद को इंसाफ दो। यह हमको सोचना होगा। हमको इनके बहकावे में, इनकी गंदी पॉलिटिक्स में हमको नहीं आना है। ये यूपी पुलिस वाले जो फायरिंग किए, मैं वहां के प्रशासन को अपील करता हूं कि उनका आईडी कार्ड चेक करे। वो पुलिस वाला था कि आरएसएस का गुंडा था, ये कौन चेक करेगा? अगर वो वाकई में पुलिस वाला रहता तो वो कानून को, संविधान को फॉलो करता, वो मासूम के ऊपर गोली नहीं चलाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे सबके पास वो वीडियो है, पुलिस को पत्थर मारने तक का वीडियो है, पुलिस ने गोली चलाई वो वीडियो है, पुलिस यहाँ तक की दादागिरी करी वो वीडियो है। वो जो अशोक जैन है उसके साथ हिंदू संगठन का जो लीडर है वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ता है वो वीडियो है। क्या ऐसे सर्वे करेंगे? और पहली बात तो सर्वे क्यों करेंगे जब एक वॉरशिप एक्ट बन चुका है तो उसका उल्लंघन करने का क्यों? आज अब ये हो गया, हम ये आइंदा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये याद रखना मेरे भाई लोग जो यहाँ पे है और जो न्यूज के माध्यम से मेरी आवाज जो सुनते हैं, आपका हक है सेल्फ डिफेंस करना। आर्टिकल 96 to 106 ये आपको सेल्फ डिफेंस करने का हक देता है। आप हाथ मत जोड़ो। अगर कानून आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा है तो आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ये देश का संविधान सिखाता है। मैं आपको अवेयर करता हूं, जब हमारी रिलीजियस प्लेस पे, चाहे मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, अगर कानून के रहते हुए अगर कोई फासिस्ट ताकत, कोई गुंडागर्दी करने आए और मस्जिद में, मंदिर, दरगाह और गुरुद्वारा, चर्च के ऊपर कब्जा करने आए तो अगर कानून नहीं रोका तो ये आम जनता संविधान के अंदर रह के आर्टिकल 96 to 106 सेल्फ डिफेंस करना जानती है और इंशाल्लाह हम करेंगे। हम मुल्क बचाने निकले, हमारे साथ बचाने निकले, हमारे साथ चलो, बचाने निकले, हमारे साथ चलो, की मस्जिद को आगे होने नहीं देंगे। आप याद रखो, ये कानून और जो बड़े बड़े गुंडे सीट पे बैठे हैं, एक बात याद रखो, वो कान खोल कर सुनो, ये 92 नहीं है। हम दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं होने देंगे। हम अपनी जान दे देंगे मस्जिद के लिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अमन का घर है, मस्जिद में अमन सिखाया जाता है, मस्जिद में प्यार मोहब्बत सिखाया जाता है। अगर आपने आइंदा कोई भी मस्जिद के ऊपर आग उठा के देखी तो ये हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे आगे खड़ा रहेगा। कानून के दायरे में रहकर कानून के दायरे में रहकर आर्टिकल 96 to 106 जो सेल्फ डिफेंस हमको अधिकार है, अगर पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया तो हमको इनको उल्टा पैर भगाने आता है इंशाअल्लाह। और मैं एक आखिरी बात खत्म करता हूँ। ये सेक्युलर नेता जो बड़े बड़े फोटो मार के घूम रहे हैं, चाहे जितेंद्र आवाड हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो, अभी तुम लोग बिल में से बाहर निकलो। आवाम का वोट लिए, आवाम बेवकूफ नहीं है, लेकिन ये टाइम आवाम बेवकूफ बन गई। जो 15 साल उम्र का कुछ काम नहीं किया, जो आदमी इतने साल कांग्रेस में रह के मुसलमान समाज की मदद नहीं किया, उससे क्या उम्मीद रखना। हमको खुद जागना होगा, हमको खुद कानून के दायरे में रह के हमको इंसाफ की बात करना होगा और इंसाफ को लेना होगा। अगर इंसाफ नहीं मिला तो यही कानून के दायरे में रह के हम इंशाअल्लाह इंसाफ को छीनना जानते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वली भाई अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरे घर में भी चिकन का सालन बना, खो के खा के मेरे को भी बैठने मालूम है, लेकिन आज आवाज नहीं भाई अभी इंशाल्लाह हमारी विंग WM वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हमारी इज्जतदार महाराणा में इस बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। भाई थोड़ा सा बात करने जाओ ना, आप तो खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज जब देश अपना संविधान दिवस मना रहा है, 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, जब आज देश में 75th मीडिया वाले को बोल दिए प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद बाइट लेने का, लोग पहले आए तो आप लोग बोलने दो ना। जब आज देश में 75th कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में हमें सड़कों पर खड़े होकर संविधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। हमारी कम्युनल सरकार हो या हमारी नाम निहाद सेकुलर ऑपोजिशन हो, ये सब के लिए डूब मरने की बात है कि 75 साल हो गए संविधान को एडॉप्ट किए हुए, और आज भी जनता, इस देश के नागरिक सड़कों पर खड़े होकर अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। संविधान के दायरे में रहते हुए उन्हें उनके हक को नहीं दिया जाता। जब संविधान में राइट टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मौजूद है, और जब ये कह दिया गया कि आजादी के वक्त जो धार्मिक स्थल, जो इबादत गाहें जिस स्टेटस पर मौजूद थी, जो मस्जिद थे वो मस्जिद रहेंगे, जो मंदिर थे वो मंदिर रहेंगे, उनका वही स्टेटस बरकरार रहेगा। सिर्फ बाबरी मस्जिद को इसमें एक्सेप्ट किया गया था। उसके बावजूद बाबरी मस्जिद गिरा देने के बाद वहाँ राम मंदिर बना दिया गया। मुल्क भर में मुसलमानों ने अमन रखा, कोई दंगा नहीं हुआ। उसके बावजूद मथुरा हो, ज्ञानवापी हो, संभल की मस्जिद हो, हर एक मस्जिद पर ये जो साजिशें की जा रही है, हर एक मस्जिद को जो बाबरी की तरह निस्ते नाबूद करने की कोशिश की जा रही है, ये सरकार की मंसूबे हम खुद बेहतर तौर पर समझते हैं। और हम भारत के नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीजन हैं। अगर सरकार ये सोचती है कि वो हमारे हक को छीन कर हमें सेकेंड ग्रेड सिटीजन बना देगी, तो वो गलतफहमी में है। हम आज अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने आए हैं, और हम सरकार को, कम्युनल सरकार और सेकुलर नाम के हाथ सेकुलर ऑपोजिशन को ये बता देना चाहते हैं कि हम अपने हक को खूब जानते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। जो संभल में इंसिडेंट हुआ और जो साजिशें रची गई, जो नौजवान मासूम नौजवानों की जाने गई, उनका कत्ल किया गया, उनका मर्डर किया गया, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। और हम सरकार को खुले तौर पर बता देना चाहते हैं कि अब आपकी ये साजिशें हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। हम कोई बाबरी मस्जिद अब रिपीट नहीं होने देंगे। आपने एक मस्जिद ले ली, हमने सब्र का मुजाहरा किया, अब हम किसी भी और मस्जिद को गंवाने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने हक के लिए हमेशा, मुसलमानों ने इस देश की आजादी के वक्त भी वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खड़े रहे, अगली सफ में खड़े रहकर उन्होंने कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी के लिए। हम आज भी हमेशा अगली सफ में खड़े होकर अपने और बकिया दूसरे मजलूमों के हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। थोड़ा सा नीचे कर दो। मैं सेकुलर नेता लोगों से पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मुमला खलवा की जो जितेंद्र आवाज सेकुलर आवाज है, वो जीतने
शहीद नहीं होने देंगे। जो हमारे 5 भाइयों को जो मर्डर किया गया है, जो एनकाउंटर किया गया है, उनको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अखिलेश को भी चैलेंज है, उनको इंसाफ दिला के रहेंगे, नहीं तो अपनी मस्जिद छोड़ दे। राहुल गांधी को भी इंसाफ दिलाने के लिए पूरा इंसाफ दिलाना चाहिए। अगर वो इंसाफ नहीं दिला सकते तो कांग्रेस पार्टी को वो छोड़ दे। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संभल के मस्जिद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, संभल के मस्जिद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, 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 कातिल पुलिस मुर्दाबाद, 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 कातिल पुलिस मुर्दाबाद, 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 यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मस्जिदों पर सरकारी हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, मस्जिदों पर सरकारी हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। कहाँ है इमरान प्रतापगढ़ी जो गंगा की रोडों में प्रचार करने के लिए आए थे कि महाराष्ट्र की एक आवाज है सेक्युलर जितेंद्र आवाज। मैं आज इमरान प्रतापगढ़ी से पूछना चाहती हूँ, आपकी पॉलिटिक्स में थू है, हमारी मस्जिदें शहीद हो रही है, आप ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे कन्हैया कुमार आए थे ना, कन्हैया कुमार आए थे ना, इमरान प्रतापगढ़ी का आए थे, कन्हैया कुमार आए थे, कन्हैया कुमार, इमरान प्रतापगढ़ी नहीं आए थे। अरे कन्हैया कुमार टोपा है। जो अलमत है, जो बता के यहाँ के लोग थे कि जितेंद्र आवाज को बात कर वोट करो, बात कर वोट करो। आज वो लोग क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं, क्यों उनकी दलाली कर रहे हो? याद रखो, अपनी मस्जिद को बचा नहीं सकते तो ऐसी पॉलिटिक्स में क्यों है, ऐसी पॉलिटिक्स में हम मानते ही नहीं। ऐसी पॉलिटिक्स में क्यों है, ऐसी पॉलिटिक्स में नहीं रहता है कि इस्तीफा दे दो। कहाँ है वो इकराम खान, वो कहाँ है? वो भी एक सेकुलर मानी गई थी ना, आज इकराम करके खामोश करा दिया गया। याद रखो, सियासत को मजबूत करो, सियासत फिर पैदा करो। इन लोगों के चक्कर में आकर इनकी सियासत को मजबूत करके सब मत जाओ। इन लोगों की एक सियासत है कि मुस्लिमों को पीछे किया जाए, चाहे वो जितेंद्र हो, चाहे वो जितेंद्र आवाज हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। चोर है चोर, इनको बात करने का तरीका नहीं है, इनको इंसान की कड़ी नहीं याद है। ये हमारे को कोई आवाज नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों से मुंबई की आवाज, महाराष्ट्र की आवाज, यूपी की आवाज, दिल्ली की आवाज, रोड पर ओ सरफराज भाई, उनसे पूछो, ओ सरफराज भाई, आप चाहिए, हमने आपके लिए वोट मांगा था ना। कहाँ है शाहरुख पठान, कहाँ है मंसूर पठान, अब कहाँ है? आगे तो बाकी लोगों को जो रोड पर उतरे, जो महाराष्ट्र के सेकुलर आवाज थे, जितेंद्र आवाज, वो कहाँ है? अब लेकर आइए ना, बहुत बोल रहे थे एसडीपीआई बीजेपी का एजेंडा है, एसडीपीआई वोट करके लेके गए, आज एसडीपीआई मैदान में आई है। तुम जैसे दलालों तक घरे रहते में बैठे हुए हो। मैडम बस करो। ओ भाई, ओ अरे इतना लॉन्ग जाएगा क्या यार, इतना प्रेम यार, तुम बोलने तो बोल रहे थे, फिर रुकाओ 2 मिनट, 2 से 4 टाइम है अपना। जो भी हो, जो सेकुलर नेता बोलते हैं ना, आप वो दलाली बंद करो, घर और मकानों से निकलो। ऐसा उठाए बेटा। हेलो, घर से निकलो और मकानों से निकलो। बैनर ऊपर करो, बैनर ऊपर। अरे यार बैनर ऊपर करो, दिखिए अरे पीछे का बंदा हमारी मस्जिद शहीद हो रही है, हमारी मस्जिद शहीद हो रही है। हमने बाबू खो दी अमन के चक्कर में, कहाँ यार इधर चालू के, अमन के चक्कर में। अरे तो पहले लेडीज ले लेता हूँ ना, ये तो क्या है, तो मिलेंगी। अब दोबारा मस्जिद नहीं करना चाहते। याद रखो, अभी यूपी का नंबर है, इसके बाद हो सकता है महाराष्ट्र का नंबर होगा, महाराष्ट्र में हो सकता है मुंबई का नंबर होगा। ये जो सब तुम्हें जैसे लिखा हुआ है ना, ये सबसे बड़ा दलाल है।
संबल में जिस तरीके से मस्जिद के सर्वे को लेकर 4 लोगों की 4 से 5 लोगों की जान ले ली गई है, उसको लेकर मुमरा में आप एसडीपीआई के माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार को मांग करना चाहोगे? जितने भी वहाँ पे पुलिस थे, मैं उनसे कहना चाहती हूँ यूपी पुलिस उनको इस्तीफा देने के लिए बोलना चाहिए। और जो राहुल अखिलेश यादव था, जो एक सेकुलर की आवाज़ थी, अब वो कहाँ है? अब वो अपने घरों में क्यों बैठा है? इलेक्शन के टाइम में हर जगह दौड़ रहे थे, वोट लेने के लिए तो आ रहे थे। अब हमारी मस्जिदें शहीद हो रही है, हालांकि उन्होंने मुस्लिम का ही वोट लिया, किसी का वोट नहीं लिया, उन्होंने मुस्लिम का ही वोट दिया। अब मुस्लिम के लिए अगर आवाज़ नहीं उठा सकते तो ऐसे नेता, ऐसे सेकुलरिज्म से तू है, ऐसे नेता को तो हमको लाना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमानों को लेकर, खास करके अल्पसंख्यकों को लेकर जो आतंक मचाया जा रहा है, उसको लेकर लगातार पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, खास करके महिला भी इसमें ज्यादातर दिख रही है जो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। आंदोलन बोले तो आंदोलन किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने की, समाजवादी पार्टी ने की, किसी ने पार्टी ने की, सिर्फ एसडीपीआई वाई पार्टी ने की, कोई पार्टी नहीं की है। अब आपकी क्या मांग है कि जो पुलिस वालों ने 5 लोगों का एनकाउंटर किया है, क्या कुछ कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए? हमारी मांग यही है, जो हमारे 5 भाई एनकाउंटर कर दिए, मर्डर कर दिया गया, उनके घरों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमारी 2 बहनें जो जेलों में बंद कर दिया गया, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जो पुलिस वहाँ पे जिन्होंने गोली चलाई, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और राहुल गांधी को और अखिलेश को आकर खुद उस चीज़ का सर्वे करना चाहिए। वो हमारी मस्जिद थी, तो जो एडवोकेट इंसाफ की आवाज़ थी ना, आज वो एडवोकेट लोग ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो हम क्या ऐसे लोगों से इंसाफ की मांग करेंगे? क्या लगता है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खराब हो चुका है? बिल्कुल खराब हो चुका है। और कौन बोल रहा है आपको? मैडम आप दे दो इनसे। मैडम, उत्तर प्रदेश के संबल में जिस तरीके से 5 लोगों की बेबुनियाद तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, मस्जिद के सर्वे को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को आखिर क्यों घेरा जा रहा है? हमारा सवाल जो है ज्यूरिसडिक्शन से है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है और वो पहले जो वो मस्जिद आज की है भी नहीं, वो 100 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन जब ये एक्ट बन चुका है कि आज़ादी के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस स्टेटस में थे उसी स्टेटस में बरकरार रहेंगे, तो कोर्ट जो है ऐसे सर्वे की अनुमति देती ही क्यों है? आखिर कोर्ट क्या चाहती है? अगर ज्यूरिसडिक्शन ही इस तरह की जो है परमिशन देती है, इस तरह की इजाजत देती है, तो ये खुद लोगों को, जो मनुवादी सरकार है, जो कम्युनल लोग हैं, जो हिंसा भटकाना चाहते हैं, उन लोगों की हिम्मतें बढ़ाती है। तो कोर्ट से हमारा सवाल है कि कोर्ट को ऐसे सर्वे की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है कम्युनल लोग यही चाहते हैं कि इस मुल्क को जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जाए। जो भी अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम्स हो, दलित हो, सिख हो, जो भी कम्युनिटीज के लोग हो, उन सबका टारगेट है, क्योंकि ये लोग इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिस तरीके से वहाँ का अनेक वीडियो सामने आया जहाँ पर फायरिंग के दौरान बेजुबान लोगों की जान ली गई, गोली मारी गई, उनको पथराव भी हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं सक्षम नहीं है उत्तर प्रदेश को बचाने में। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी, वो खुद जो है एक कम्युनल आदमी है और वो खुद ये चाहते हैं कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, इसलिए वो जानबूझकर जो है अपनी प्रशासन का इस्तेमाल करके इस तरीके की चीजें जो है वजूद में लाते हैं, मस्जिद का सर्वे कराते हैं। ये एक वही फिक्स पैटर्न है जो बाबरी के साथ किया गया। पहले सर्वे कराएंगे, उसके बाद कहेंगे कि यहाँ पर शिवलिंग था, ये पहले मंदिर थी, फिर ताला लगाएंगे, उसके बाद मूर्ति रख देंगे। ये वही सेट पैटर्न है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी इसमें बहुत आगे। जिस तरीके से लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव में अल्पसंख्यकों के वोटों ली जाते, लेकिन उनके लिए काम में कोई नहीं आता नेता। चुनाव के दौरान सिर्फ भाषण दी जाती है कि अल्पसंख्यकों के लिए हम सबसे पहले आगे आएंगे, लेकिन अंत में आते कि एसडीपीआई सबसे पहले आंदोलन पे उतरती है। हम लोगों को वही समझाना चाहते हैं कि आप अपनी आंखें खोलें। अब इट्स हाई टाइम कि लोग ये चीज को समझें कि आप जिन्हें वोट दे रहे हैं वो आपके हक के लिए लड़ भी रहे हैं या नहीं, और वो नहीं लड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसलिए लोगों को अपना वोट सोच समझ के देना चाहिए। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर मुद्दे पर किसी भी माइनॉरिटी, किसी भी कस्टम कास्ट के लोगों के साथ जो है ज्यादती होती है, एसडीपीआई हमेशा सड़क पर खड़ी होती है। लोगों को अपनी आंखें खोल के देखना चाहिए, एसडीपीआई को जो है मौका देना चाहिए।